नमस्ते। 1 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक कारखाने में धमाका हुआ। इस हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है और 23 लोग घायल हुए थे। ये कारखाना SBL एनर्जी लिमिटेड का था। ब्लास्ट के बाद मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल फैक्ट्री का मालिक आलोक चौधरी अभी भी फरार है। 1 मार्च को हुए इस हादसे के बारे में अगर आपको मालूम नहीं था तो इसका जिम्मेदार हमारा देश का वो न्यूज़ तंत्र है जो देश में होने वाली इतनी दुखद घटना को देश का मुख्य मुद्दा नहीं समझता। नागपुर में हुए इस भयावह हादसे का शिकार आम जनता थी, इसीलिए ये मुद्दा प्राइम टाइम डिबेट में अपनी जगह नहीं बना पाया। बस न्यूज़ वेबसाइट पर इस बारे में एकाध आर्टिकल पब्लिश हुए। इस हादसे के लगभग 25 दिन गुजर जाने के बाद भी मुख्यधारा की मीडिया चैनल्स पर इसे लेकर कोई फॉलो अप रिपोर्ट्स या अपडेट्स पब्लिश नहीं की गई थी। जब ऑल्ट न्यूज़ ने देश के चुनिंदा बड़े न्यूज़ चैनल्स के 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच के प्राइम टाइम शोज देखे तो पाया कि हमारे ही देश के ये बड़े न्यूज़ चैनल्स जमीनी स्तर की इन खबरों को छोड़कर ग्लोबल लेवल पर चर्चा विचारणा कर रहे हैं। That's the single most important question. The swift resolution that Trump hoped for appears unlikely, not because the Iranians are not on the ropes, but because Trump's objectives appear unattainable to a large number of people. Trump has said that the US with Israel will weaken the regime in Tehran to the point that it will not or it will melt away. And if it does not, it will be so smashed, so degraded, that the Iranian people will take to the streets to overthrow it. In other words, regime change is the logical end point. Are they blinded by their hate for Modi that they will carry it so far as to turn a blind eye to the facts of this war? Of course, in principle, wars don't solve anything. That is the bottom line. But are they blind to what's really happening in Iran? Navika, I don't know where you've got this from, that wars don't solve anything. Successful wars solve a lot of things. Yes, there is a case for war. I'm not sure if this war is going to solve anything, but that's another matter. And secondly, I think, listen, we can keep doing whataboutery, but let's come down to the brass tacks as far as I'm concerned. Tayyar Mitra, why is the opposition just so heated up about the fact that Khamenei's death has not been condemned? War on Iran. What really is the end game in a fast developing situation? It is a conflict where the end game is simply not clear. We'll have voices once again from all the hot button areas in this growing, escalating conflict, plus every news that's coming in. But first, as always, I want to take you tonight through the top 10 developments for the day in that escalating conflict in West Asia. Point, you're claiming that Donald Trump at least partly has been driven by the fact to make this a weapon of mass distraction, if I may use that word, from the economic crisis, the Epstein files, and that it is Netanyahu who's leading the aggression, and Donald Trump has chosen to play ball in a way previous American presidents have not. What really has changed? Is it just simply the way Donald Trump is in comparison to his predecessors? Here is a president who has simply no time for the international rules-based order. That's why he's chosen to go along. So far, things have existed in crossfire between the US, Israel, and Iran. Iran has hit back, but many people watching the combat are wondering whether a maximum war or a maximum escalation situation that doesn't quite become a nuclear exchange is even possible. Is that possible? Let's try and simulate some of the steps. And I want to start with something that actually did happen yesterday. I'm sorry, but this is serious. Haider Hayat is with us. Haider Hayat, 12 Pakistanis have been killed by the security forces for coming out in support of Khomeini. But you have a lot of Shia. You have a lot of Shia. You have a lot of Shias in Pakistan. How many people can be killed like this if these protests continue? Khamenei told the Iranian parliament to attack India. And the Iranian parliament passed resolutions saying India is an anti-Muslim country.
How come this does not matter to you, Asif? They started retaliating. They are continuing to retaliate fairly effectively. But how much firepower do they have? How much? May I just How much? remind How you, much? this is a General Bakshi, midterm election General Bakshi, year. however much one can rate, yes, compared to Venezuela, they are a bigger military force. But you are dealing with the United States of America. There is no comparison. The staying power is much, much more. Debates tonight. Pakistan in an absolute fix. Radio silence from Shehbaz Sharif. Not a word from Asif Munir as the American consulate in Lahore is burnt amidst nationwide violence. ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब पश्चिमी एशिया के एक महायुद्ध में बदल चुका है। ईरान चुन चुनकर ऐसे मुस्लिम देशों को निशाना बना रहा है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस है। पिछले 3 दिनों में ईरान 15 देशों पर हमला कर चुका है और आज ईरान ने सऊदी अरब में वहां की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की एक तेल रिफाइनरी पर भी हमला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का आज चौथा दिन है और अब दोनों तरफ से हमले रुकने की बजाय, कम होने की बजाय तेज हो गए हैं। इजराइल ने आज ईरान के राष्ट्रपति भवन, संसद और सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर पर हमला किया है। इसके जवाब में ईरान ने भी रियाद में अमेरिका के दूतावास पर और इजराइल पर सुपरसोनिक मिसाइलों से अटैक किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि वो वेनेजुएला की तरह ईरान को भी फटाफट जीत लेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध लंबा चलेगा और अगर ऐसा हुआ तो यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। अली खamenei की मौत के बाद दुनिया में बदलते हालात और बढ़ती परेशानियों के बीच आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के रहबर अयतुल्लाह अली खamenei के साथ गद्दारी किसने की। इजराइल और अमेरिका के हमले में खamenei की जान चली गई और अब ऐसा लग रहा है कि जंग पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर रख देगी। तो देखिए, जब ईरान के मसलों से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की लपटों में जल रहा है, तब मोसाद ने ईरान के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल को हैक कर लिया है। चौथे दिन भी जंग यूं ही जारी है। ना ईरान हारा है, ना अमेरिका जीता है। हाल ये है कि ईरान पर जमकर बारूद बरसाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के चक्कर में कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अपनी जमीन पर हमले झेल रहे हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब लग रहा है कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका को बुरी तरह थका सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान को थका दे। 1 मार्च को डिबेट विद अर्नब में ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की हत्या को लेकर चर्चा हुई थी। ग्लोबल के साथ साथ रिपब्लिक ने मदुराई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को भी कवर किया था। 2 मार्च के सेगमेंट में रिपब्लिक ने फिर ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग पर बातचीत की और रहा सवाल भारत की खबरों का, तो अर्नब ने लेह से दिल्ली की स्पाइस जेट की फ्लाइट में हुई गड़बड़ी को हाईलाइट किया। साथ ही भारत और कनाडा के बीच साइन किए गए एमओयू को भी कवर किया गया। 3 मार्च के दिन भी डिबेट विद अर्नब में ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग को लेकर ही चर्चा हुई। वहीं 3 मार्च के रोज अर्नब गोस्वामी ने एक और सेगमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के बाहर खamenei की मौत के बाद हुए प्रदर्शन को लेकर चर्चा की थी। एनडीटीवी पर भी 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच हुए प्राइम टाइम शो का हाल कुछ ऐसा ही रहा। वेबसाइट पर नागपुर ब्लास्ट को लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी, लेकिन इस बारे में प्राइम टाइम शो के दौरान कोई चर्चा नहीं की गई। पत्रकार शिव अरोर एनडीटीवी पर इंडिया मैटर्स नाम का एक प्राइम टाइम शो चलाते हैं। हालांकि ये शो 1 मार्च के रोज एयर नहीं हुआ था, वहीं 2 मार्च को इंडिया मैटर्स के दौरान ईरान अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य हमले को लेकर चर्चा की गई थी। 3 मार्च के रोज भी इंडिया मैटर्स में सस्ते लड़ाकू ड्रोन के उत्पादन को लेकर ईरान की नीतियों पर ही बातचीत हुई थी। इंडिया टुडे के प्राइम टाइम शो, जिसे पत्रकार राजदीप सरदेसाई होस्ट करते हैं, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। 1 मार्च को पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग से लेकर दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी मीटिंग के बारे में चर्चा हुई थी। 2 मार्च के रोज भी डिबेट का ज्यादातर हिस्सा युद्ध के इर्द गिर्द ही रहा। वहीं देश से जुड़ी न्यूज दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल के सार्वजनिक रूप से भावुक हो जाने पर कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी पर बातचीत की गई।
और 3 मार्च को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के उस आरोप को लेकर बातचीत हुई थी कि भारत सरकार ने खमनेई की हत्या पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं जताई थी। इन तीनों दिनों में इंडिया टुडे के एक्स और यूट्यूब चैनल पर नागपुर ब्लास्ट से जुड़ी रिपोर्टिंग गायब दिखी। टाइम्स नाउ की वेबसाइट पर भी नागपुर हादसे को लेकर खबर पब्लिश की गई थी, लेकिन 1 मार्च से 3 मार्च के दौरान उनके प्राइम टाइम शो में इस बारे में कोई बहस आयोजित नहीं हुई थी। 1 मार्च को पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से लेकर खामनेई की हत्या और पीएम मोदी की मदुराई रैली पर डिबेट हुई। 2 मार्च को सीनियर जर्नलिस्ट नविका कुमार ने अपने न्यूज आवर 9 शो में कथित रूप से खमनेई के प्रति सहानुभूति दिखाने पर चर्चा की और 3 मार्च की शाम में कांग्रेस पार्टी का युद्ध को लेकर रुख क्या है, इस बारे में बहस हुई। CNN न्यूज 18 के प्राइम टाइम शो में भी यही सब हुआ। वेबसाइट पर नागपुर ब्लास्ट की खबरें थी, लेकिन चैनल पर इस हादसे को लेकर कोई बुलेटिन नहीं था। 1 मार्च से 3 मार्च के बीच चैनल का ध्यान वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट से लेकर खामनेई की हत्या रहा। इन्हीं दिनों के दौरान आज तक चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट और डीडी न्यूज के डीकोड शो में भी ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी जंग पर ही बातचीत हुई। इन शो में अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी ने खामनेई की हत्या और ईरान की स्थिति को कवर किया और देश के पॉपुलर हिंदी न्यूज चैनल्स पर नागपुर ब्लास्ट के मृतक और पीड़ितों के दुख को आवाज नहीं मिल पाई। भारत का नागरिक जब रात को इन बड़े न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम शो को देखता है तो उसे लगता है कि भागदौड़ वाली दिनचर्या में देश की जिन खबरों को वो नहीं देख पाया उनके बारे में उसे अब पता चल जाएगा। खैर, प्राइम टाइम शो में खबरें दिखाई गई, डिबेट हुई, विचार रखे गए, लेकिन देश के ही एक तबके से जुड़ी खबरों को इन बड़े कार्यक्रमों में जगह नहीं मिल पाई।